So another application is for the geometrical figures like rectangle, square, triangle. So these geometrical figures also form a linear equation. So let's discuss with a very easy question related to the geometrical figures. It says the perimeter or circumference. So guys, one thing I wanted to make it clear, perimeter हो, circumference हो, दोनों का मतलब होता है बाउंड्री. अगर कोई रेक्टेंगल है, प्लॉट है, तो इसकी बाउंड्री में मैं दीवार बना दूं तो उसको बोलते हैं पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस. जनरली सर्कमफ्रेंस यूज होता है सर्कल्स के लिए, बट अगर सर्कमफ्रेंस भी लिखा है तो समझना दे आर टॉकिंग ऑफ ओनली दी पेरीमीटर. एंड इफ अगर अंदर मैंने खेती करनी हो, फ्लोर डालना हो, मार्बल डालना हो, तो इसको बोलते हैं एरिया. तो बाउंड्री इज पेरीमीटर एंड इनसाइड इट इज एरिया. when we'll do this chapter मैं इसको और ज्यादा क्लियर करूंगा. ठीक है. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 3/4 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स लेंथ. ओके. सो गिवन इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर. यूनिट्स कभी डालने नहीं बोले. एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. 2 into L plus D is the formula for perimeter. So 13 centimeter. So let हमें लेंथ ढूंढनी है. let length of rectangle is x सेंटीमीटर या L भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है. ठीक है. x ले लो क्योंकि हम जनरली वेरिएबल्स इस चैप्टर में हमने x से ही लिए. सो 2 इंटू एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या है? 2 3/4. So this 2 is getting multiplied with the whole equation. इस तरह के डिवाइड हो जाएगा और इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बना देता हूं. 4 2 8 8 3 11/4 is equal to 13/2. Okay. So x is equals to 13/2 minus 11/4. So x is equals to, taking the LCM, 2 2s are, तो 13 2s are 26 बना and 11. So x comes out to be 26 minus 11 is 15/4. और अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है तो वो भी बन सकता है. 4 3s are 12 plus 3 is the remainder. So इतने सेंटीमीटर is my answer. Another very important question, students. The perimeter of rectangular pool is 154 meters. Its length is 2 more than its twice its breadth. तो length is directly related to breadth. तो मैं क्या लिखूंगा? Let breadth of pool is x meters and length of pool is, क्या कह रहे हैं? It is 2 more than twice its breadth. तो ये बना twice, 2 more है तो 2 ऐड कर दिया. यूनिट्स नहीं बोल रहे. सो पेरीमीटर गिवन है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 into L plus B is formula for perimeter which is 154 meters. तो 2 into L क्या है हमारे पास? L है 2x plus 2 and breadth is x. So 154 meters. So बेटा 2 into 2x plus x is 3x plus 2. और आप ये भी कर सकते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. So 3x is equal to 77. इसको डिवाइड करने के बाद, और ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या हो गया? माइनस. ओके. So 3x is equals to 75. So x comes out to be 75/3. ये कटिंग हो गई 25 पे. So x comes out to be 25. Okay. Now what they say? What are the length and breadth of the pool? So length कितनी आ गई? Length is 2x plus 2, which is 2 into 25 plus 2, which is 52 meters. And breadth is x only, so x is equals to 25 meters. Is that clear? And they can also ask students, find the area of the pool. So area of the pool क्या होता है? रेक्टेंगुलर पूल है तो एरिया हो जाएगा L into B, लेंथ into breadth. So लेंथ आ गई हमारे पास 52 into 25. So this comes out to be 52 into 25. 5 2s are 10, 25 are 26,
104, so 0030. So 1300 meter square. So the area is always in square units. So that is the answer. Next, very important question and little tricky also. It says the length and breadth of a rectangular plot are in the ratio 11:4. So ratio, you are very much clear now with the concept. Whenever it is the ratio, take it as in the ratio mode. Let length is 11x per meter, so meters, and breadth is 4x meters. So when you divide these, you will find the ratio 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, it will cost rupees 75,000 to fence the plot. Please understand, fence means boundary. Boundary means perimeter. ओके, यहां से चेक करना है. सो वो क्या कह रहे हैं कि टोटल खर्चा आया 75,000 विद अ चार्ज ऑफ 100 पर मीटर. तो 100 पर मीटर के कॉस्ट के अकॉर्डिंग टोटल एक्सपेंडिचर इज 75,000. फाइंड द डायमेंशंस. डायमेंशंस का मतलब है दे आर टॉकिंग ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ. ये निकालनी है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स मेक द क्वेश्चन. टोटल कॉस्ट for fencing the plot at the rate of rupees 100 per meter is rupees 75,000. तो टोटल हमारे कॉस्ट को 100 पर मीटर, 100 पर मीटर मीन्स 1 मीटर को फेंस बाउंड्री बनाने का खर्चा आया 100 रुपए. तो कितने मीटर हमने किया? सो देयरफॉर total fencing in meters will be equal to 75,000 divided by 100. क्योंकि 1 मीटर का 100 रुपए खर्चा है, तो कितने मीटर किया? क्योंकि ये टोटल खर्चा था. सो दिस कम्स आउट टू बी 750 मीटर्स. सो ये 750 मीटर जो फेंसिंग हुई, इसका दूसरा नाम क्या है? पेरीमीटर. सो देयरफॉर perimeter of rectangular plot is 750 meter. और ये किसके बराबर है? 2 into L plus B. L है हमारे पास 11x और B है 4x. 750 meters. So 11x plus 4x becomes 15x. Is equal to 750. So 2 into 50 is 30x. Is 750. So x comes out to be 750 by 30. 0 से 0 cancel. 3 1s are 3 25s are. So therefore x is 25. So therefore length is 11x, which is 11 into 25, which is 275 meters, and breadth 4x, which is 4 into 25, which is 100 meters. Is that clear? So another topic related to applications is, and the most important topic, time, speed and distance. So students, before starting this concept, I'll tell you the importance of this. Every second year, every alternate year in class 10th, the question comes of this type. So the thing which comes in class 10th, the base is gonna establish in class 8th. Okay, so let's understand this concept very carefully. We have seen many a times students of class 10th do not know how to solve it. Okay, the same question. So my viewpoint is that you should be trained in such a manner that you learn all these concepts even in this class. So let's understand it carefully. Question, and before this also I'll tell you few things. These questions relate to time, speed and distance. So one formula you always remember, that is distance is equals to speed into time. Distance is equal to speed into time. This is one of the thing. Another, there are two types of cases. One is
when let's suppose this is a river is going in the upward direction or the you can say downward direction. So the example taken out from, आप किसी पुल पे चढ़ रहे हैं साइकिल पे, तो आप जब पुल पे चढ़ेंगे आपको ज्यादा टाइम लगेगा रेदर देन पुल से उतरने के लिए. इज दैट क्लियर? गॉट इट? क्योंकि फ्रिक्शन प्लेज इट रोल. सिमिलरली जब भी कोई नदी होती है, ठीक है, जब भी कोई नदी होती है तो उसकी अपना एक फ्लो होता है, तो नदी का फ्लो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है. ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या चलता है कि ये है मेरा सेकंड पॉइंट. इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम या रिवर कह लो इज y किलोमीटर पर आवर, एंड ये एक बोट है, यहां पे ये एक बोट है, ठीक है, ये एक बोट है, एंड इफ स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर, तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी ये बोट अगेंस्ट दी फ्लो जाएगी ऑफ रिवर, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड, ये आपके लिए नया वर्ड है, रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट व्हाइल गोइंग अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम मींस, देखो ध्यान से समझियो, पानी हमेशा ऊपर से नीचे आएगा और बोट नीचे से ऊपर जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी स्पीड से सबट्रैक्ट कर रही है और एक रिलेटिव स्पीड हमेशा बन जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. और रिलेटिव स्पीड व्हाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम, अब वही पुल पे जब आप साइकिल ऊपर से नीचे लेके आओ तो साइकिल बहुत तेज चलता है. सिमिलरली जब आप इसी रास्ते से वापस आएंगे, ठीक है, क्योंकि रिवर का फ्लो भी नीचे है, आपकी बोट का फ्लो भी नीचे है, तो आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी, तेज हो जाएगा आपका व्हीकल. तो डाउनस्ट्रीम इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. तो ये याद रखना, ये फंडामेंटल थ्रू आउट लाइफ आपके काम आना, थ्रू आउट लाइफ. इज दैट क्लियर? दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी डिस्कस्ड थ्रू आउट लाइफ. ये मेरा सेकेंड पॉइंट था कि जब अपस्ट्रीम जाना है तो स्पीड माइनस होनी है, और जब डाउनस्ट्रीम आना है तो स्पीड ऐड होनी है. और इसमें एक और बड़ी खास चीज, हमेशा एक assumption है कि स्पीड ऑफ बोट इज ऑलवेज मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम. कि जो उसके अंदर जो बोट चल रही है नदी के अंदर, पानी के फ्लो से ज्यादा ही स्पीड होगी. अब कई बच्चे इसमें दिमाग रखते हैं कि सर अगर भूचाल आ जाए, अगर तूफान आ जाए तो पानी की स्पीड ज्यादा होती है. बट यस, वी आर टेकिंग क्वेश्चंस इन दी रेगुलर कॉन्टेक्स्ट कि भाई स्पीड ऑफ बोट इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम. इज दैट क्लियर? अनदर थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस और सिचुएशन, एक बंदा इधर खड़ा ए पॉइंट पे और दूसरा बंदा खड़ा बी पॉइंट पे, ये दोनों एक ही तरफ चलना शुरू हो गए सेम डायरेक्शन में. तो इसकी स्पीड x किलोमीटर है और इसकी स्पीड y किलोमीटर है, और ये यहां कहीं जाके मिल गए आपस में. क्लियरली मिलेंगे तब अगर x की स्पीड a की स्पीड b से ज्यादा हो. तो याद रखिए, when they both move in same direction, the relative speed will be x minus y किलोमीटर पर आवर. एंड लेट्स सपोज ये a x से a ये b है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है. सो व्हेन दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो उनकी रिलेटिव स्पीड, क्योंकि वो जल्दी मिल जाएंगे तो मतलब स्पीड बढ़ गई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. So these three concepts will be used in such questions related to, ये दो तो अपने फॉर्मूला कॉपी में क्लियरली नोट कर लेना, बहुत काम आएंगे. So let's understand this question. It says a steamer goes downstream from one port to another.
ये एक पोर्ट है, ये दूसरा पोर्ट है, ठीक है, और ये यहां पे नदी है साहब, ओके। जैसे a steamer goes downstream from one port to other in 6 hours, तो जब नीचे आ रहे हैं उसको लग रहे हैं 6 hours, and it covers the same distance upstream, ऊपर जाते हुए उसे लगते हैं 7 hours, same distance। If the speed of the stream, जो speed of stream है, नदी का फ्लो है, वो कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर, स्टीमर बोट को ही कहते हैं, इन स्टिल वाटर। सो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? लेट स्टिल वाटर मीन्स ठहरा हुआ पानी, मतलब सिर्फ स्टीमर की स्पीड की बात हो रही है। लेट स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर is x kilometers per hour. Okay, so while going downstream, speed of boat या speed of steamer क्या हो जाएगी? इट विल बी डाउनस्ट्रीम है, नीचे आ रहे हैं, और उसको कितना टाइम लग रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड है स्ट्रीम की, तो हो जाएगा x + 2 किलोमीटर पर आवर। एंड वाइल गोइंग अपस्ट्रीम, वही स्पीड ऑफ स्टीमर क्या बन जाएगी? x - 2। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, अगर अपस्ट्रीम है तो x - y, डाउनस्ट्रीम है तो x + 5, और y यहां पे क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मुझे पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। व्हाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम उसने कितना टाइम लिया? 6 आवर्स, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड है उसकी कितनी? x + 2 और टाइम कितना है? 6 आवर्स, तो ये बन गया डिस्टेंस इज इक्वल टू 6x + 12, ओके। और दूसरी सिचुएशन में व्हाइल गोइंग अपस्ट्रीम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है? x - 2 और टाइम कितना लग रहा है? 7, सो डिस्टेंस कितना बन गया? 7x - 14। नाउ यू सी बोथ दीज आर डिस्टेंस फ्रॉम A to B, चाहे A to B जाओ चाहे B to A जाओ, डिस्टेंस तो बराबर है। सो द डिस्टेंस इज इक्वल, सो देयरफॉर व्हाट आई कैन से 6x + 12 is equal to 7x - 14. So 6x - 7x is equal to -14 - 12. So -x is equal to -26. So therefore x is equal to 26. Is that clear? So question was find the speed of steamer in still water, which is x. So therefore speed of steamer in still water is equal to x kilometer per hour, which is 26 kilometer per hour. Again I am saying units लिखने बेटा बहुत ही जरूरी है and highly important question, highly important, ठीक है। Another very important question. 2 trains start simultaneously from 2 stations 300 kilometer apart. So there is a station A and there is a station B and they are 300 kilometers apart. कितने दूर है एक दूसरे से? 300 किलोमीटर, एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर। सो ये इधर चलना शुरू हो गई और ये इधर चलना शुरू हो गई, ओके, टुवर्ड्स ईच अदर। द स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज मोर देन द अदर बाय 20। सो अगर मैं इसकी स्पीड x ले रहा हूं तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा? x + 20। इज दैट क्लियर? स्पीड। सो शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन। लेट स्पीड ऑफ one train is x kilometer per hour and speed of other train is x + 20 kilometer per hour. If the distance between the trains after 2 hours
डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 किलोमीटर। मतलब कि ये अगर इतनी x की स्पीड पे चली, ये अपनी स्पीड पे चली, मतलब इसने इतना डिस्टेंस कवर किया और इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो बीच वाला डिस्टेंस अभी भी दोनों में 20 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ट्रेन्स in 2 hours is 300 minus 20 which is 280 किलोमीटर। दोनों ट्रेन्स का इकट्ठा तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट लगता है। इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर देयर रिलेटिव स्पीड इज x plus y। So as both trains are moving towards each other, इसका दूसरा नाम होता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये भी याद रखना, ईच अदर दियर रिलेटिव स्पीड, दियर रिलेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के रिलेटिव इज क्या हो जाएगा, एक की स्पीड ऐड हो जाएगी। सो एक की स्पीड है x और दूसरे की x plus 20, सो इट विल बी 2x plus 20 किलोमीटर पर आवर। और हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस इज 280 किलोमीटर, स्पीड इज 2x plus 20 इनटू टाइम इज गिवन एज 2 hours। सो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 280 डिवाइड बाय 2 इज 2x plus 20। नाउ 140 is equals to 2x plus 20. So bring x to left side, minus 2x is equals to 20 minus 140. Minus 2x is equal to minus 120. Minus minus cancel, x is equals to 120 by 2, which is 60. So question was find the speed of the trains. So speed of first train is x is 60 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स नहीं भूलने। स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इज x plus 20 which is 60 plus 20 is equal to 80 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? क्वाइट इंटरेस्टिंग। बस ये तो फंडामेंटल्स कभी नहीं भूलने। एंड माइंड माय वर्ड्स, दिस क्वेश्चन माइट हैव बीन डन in your schools in a different manner, but what I'm trying to tell you is the fundamentals used in this question। तो याद रखिए, अगर मैं ऊपर जा रहा हूं, मेरा जोर लग रहा है, ठीक है, तो मेरे को टाइम लगेगा, तो स्पीड कम हो जाएगी। टाइम ज्यादा है, स्पीड कम होगी। टाइम कम है, स्पीड ज्यादा होगी। तो टाइम एंड स्पीड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये पहला फंडामेंटल, वही फंडामेंटल मैंने यहां यूज किया। अगर मैं यहां खड़ा हूं और एक बंदा यहां है, हम एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, हम जल्दी मिलेंगे। जबकि अगर ये इधर जा रहा है, मैं इधर जा रहा हूं, तो हम दूर कहीं जाके मिलेंगे और लेट मिलेंगे। सो दीज टू फंडामेंटल्स आर यूज्ड in these questions, and these will form this will lay the foundation for your class 10th same chapter linear equations, but that will change to 2 variables instead of 1 variable. So quite important questions, both of them. A very good morning class 8 students. So today we are going to do a very important concept of applications of linear equations in 1 variable, a 2-digit number. So questions based on 2-digit numbers. So my first question is the ones digit. So please understand what is a 2-digit number. Before I start with this question, let's understand the basic fundamental behind it. Now if you see, I would say 23 is a 2-digit number. Okay. Now what is the extended form of 23? This is ones place, this is tens place. So the expanded form you have studied in your junior classes of 23 is 2 into 10 plus 3 into 1, because this is at tens place and this is at ones place. So expanded form of the 23 is 2 into 10 and 3 into 1. This is for tens place and this is for ones place. Okay, so this fundamental we are going to use in this particular question or any question
related to a two-digit number. Now it says the ones digit of a two-digit number. The ones digit means the digit at ones place of a two-digit number is twice the tens digit. So the ones digit, what they are saying is twice the tens digit. So मतलब ones digit is dependent upon tens digit. So what I would say, let the digit at tens place, क्योंकि relationship 10 के साथ है, is equal to x. So the ones digit is two times the is twice the tens digit. So therefore the digit at ones place will be 2x. ये point clear है सबको? Now, so therefore the two-digit number कैसे बनेगा? What will be the expanded form of this number? 10 will, because tens place है, so क्या है tens place पे? Digit x है, so 10 will be multiplied with x, और ones place पे क्या है? 2x है, so 1 will be multiplied with 2x. So this will be 10x plus 2x, so the two-digit number is 12x. Okay? Now we need to find the value of x. Another part, when the number formed by reversing the digits. चलो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन पे, रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट्स. अगर मैं इन्हीं डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, 32 बना दूं, तो क्या हुआ? 2 की जगह 3 आ गया, 3 की जगह 2, बट एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या डिफरेंस आया? 3 will be multiplied with 10 and 2 will be multiplied with 1. Is that clear? The same happens over here. So if the digits gets reversed, so two-digit number क्या बनेगा? Two-digit number will be, जो 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था वो 1 के साथ होगा, वही हमने वहां सीखा, और जो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था वो 10 के साथ होगा. So 10 into 2x और 1 into ये 1x. So this will be 20x plus x means 21x. Is that clear? So this is when the new number. So you can say, so therefore the new number after reversing is 21x. Question is, when the number formed by reversing the digits, ये वाला number is added to the original number. Original number कौन है? ये number, original number. The sum is 99. So this is my situation. According to question, new number plus original number is equal to 99. So 21x plus 12x, 33x is equal to 99. So x comes out to be 99 upon 3, 33, which is 3. So x comes out to be 3. So question was find the original number. So therefore the original number is equals to क्या था? 12x. So 12x. So 12 into 3, that is 36. Is that clear? Got it? अब वो कहते हैं, let's suppose they say justify this answer. So justification क्या होगी? Original number 36, new number when the digits get reversed, मतलब 6 3 की जगह पे आ जाए, 3 6 की जगह पे आ जाए. And what they are saying, the total is 99. Check it out. इनकी total 99 आई, ठीक है? So therefore verified or justified. Is it clear? Got this point? तो बड़ा क्लियर है. और यही क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज फॉर्म में आए, हमने चलना ही हमेशा जस्टिफिकेशन से. Got it? हमने कभी सॉल्व नहीं करना पूरा सम, we will go by justification. और यहीं पे 36 3 का डबल 6, यही कह रहे थे ना, the number digit at tens place is twice the ones place. Ones place पे 3 है, tens place पे 6 है, तो बिल्कुल उसका डबल हो गया. Another very important question. It says the sum of digits of a two-digit number is 11. तो दोनों digits का sum 11 है, तो सोचो कैसे कैसे नंबर बन सकते हैं. देखना, it can be 29, it can be 92. दोनों का sum 11, तो एक सेट ये बन गया.
it can be 38, it can be 83, it can be 47, it can be 74, it can be 56, it can be 65. Okay, now so these are the possibilities कि sum of the digits of a 2-digit number is 11. Now the number obtained by interchanging the digits, कि अगर मैं उन्हें इंटरचेंज कर दूं, exceeds the original number by 27. मतलब पहला नंबर छोटा है, अगला नंबर जो न्यू नंबर बनेगा आफ्टर इंटरचेंजिंग वो बड़ा है, और उन दोनों का डिफरेंस 27 है. और अगर आप देखिए यहां पे 92 minus 27, 92 minus 29, it is coming out to be 63. तो ये तो आंसर हो नहीं सकता. 38 minus 83 minus 38, so again ये आंसर हो नहीं सकता. 74 minus 47, 14 minus 7 is 7, 6 minus 4 is 2. तो आंसर तो हमें यहीं से पता चल गया. Why I have done this exercise? Because अगर MCQs based क्वेश्चन आए, आप ऐसे आंसर निकालेंगे. इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें उसको MCQs ये 4 ऑप्शन आती तो आपने आंसर किसको लिखना था? 47 and 74. तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन इन अ फुल फ्लेजेड मैनर. नाउ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 11. तो 2 डिजिट्स का सम कितना है? 11. तो अगर मैं एक डिजिट को x से एज्यूम करता हूं, व्हाट विल बी द सेकंड डिजिट? इट विल बी 11 minus x. क्लियर? ठीक है. सो व्हाट आई विल से, लेट द डिजिट एट one's place is x. So therefore digit at 10th place will be 11 minus x. तभी दोनों का सम 11 होगा. So therefore 2-digit number क्या हो जाएगा? 10th place वाला 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1st place वाला 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. So 110 minus 10x plus x. So this gives me 110 minus 9x. Clear? So this is the original number. कहीं पे या ओरिजिनल नंबर लिख लो या नंबर लिख लो, 2-digit नंबर. ठीक है, 2-digit नंबर. ओके, सो एक तो ये आ गया हमारे पास. फिर कहते हैं द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स exceeds the original number by 27. So after reversing the digits, reversing लिख दो, interchanging लिख लो, कोई डिफरेंस नहीं. After reversing the digits, the new number will be, तो क्या बताया था? 10 वाला 1 वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, मतलब 74 का 47 का 74 बना, प्लस 1 जो 10 वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस बिकम्स 10x plus 11 minus x. So 10x minus x is new x, 9x plus 11. So this is my new number. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिचुएशन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द न्यू नंबर एक्सीड्स द ओरिजिनल बाय 27. मतलब न्यू नंबर बड़ा है. सो न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 27. सो न्यू नंबर है बेटा 9x plus 11 माइनस ओरिजिनल नंबर है 110 माइनस 9x इज इक्वल टू 27. सो 9x plus 11 minus 110 plus 9x is equal to 27. So 9x plus 9x is 18x. 110 minus 11 तो ये बन गया प्लस माइनस माइनस 99, तो वो उधर जाके हो गया एड 27 plus 99. लेट मी क्रॉस चेक अगेन. यस, सो x will be equal to 9 7 16, 9 2 11 1 12 upon 18. Is that clear? Got this point? Now 18 sevens are 126. Is that clear? So therefore x comes out to be 7. So question was, what is the original number? So therefore
the original number is 110 minus 9x. So 110 minus 9 into 7. So 110 minus 63. So 10 minus 7, 3 is 7. 10 minus 6 is 4. So the original number is 47. Is this clear, everybody? Quite easy.